Let's begin with today's session. So, in the previous lecture, we have talked about magnetic effects of electric current. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था साइक्लोट्रॉन मोशन जो होता है, इसमें दो फोर्सेस होते हैं and these forces when equated we get this is the formula for the momentum. चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम ये होगा and this is the time period and the frequency. This is all what we have seen so far. Now अगर मैं इसको in terms of velocity लिखना चाहूँगा, I'll take this further now. हमने दो फोर्सेस जो यहाँ पर इक्वेट किए थे वो कौन से थे? पहला था फोर्स, the force due to the magnetic field, and that force was actually providing the necessary centripetal force. Necessary centripetal force was provided by the magnetic force. So this force is given by mv square upon r. mv square upon r या r capital R भी हो सकता है, ये this can be the capital R is equal to magnetic force जो होता है that is nothing but q v b into sin theta, but theta is equal to 90 degree, तो ये 1 हो जाता है. इसमें से velocity gets cancelled, and what is the expression for velocity that we get there? V is equal to qbr or qbr upon mass. This is the expression for velocity. velocity का expression है. तो ये अलग अलग फॉर्मेट जो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज करने वाले हैं. नाउ इफ दिस इज द current velocity, I can write an expression for kinetic energy, like kinetic energy is equal to half mv square, that is equal to half m, और इसका स्क्वायर आएगा q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर upon m square. M gets cancelled, and what do we get there is the kinetic energy is given by q square b square r square upon 2 times the mass. So this is the expression for kinetic energy. I hope this is clear to you all. ठीक है? Any doubts about that? यहाँ पर कई बार उसको ये रेफर करते हैं R exit. R exit मतलब कि जब ये साइक्लोट्रॉन में घूमता रहेगा तो जिस रेडियस से वो बाहर निकलता है, that radius is the maximum radius. We call this as the exit radius, because it's coming out from any of the windows. यहाँ पर विंडो होगा तो उससे वो बाहर आएगा निकल के. I hope this is clear to all. ठीक है, तो हमने यहाँ पर राइट हैंड रूल देखा था. You have seen the right hand rule. बराबर है क्या? हमने जो डायग्राम देखा था उस डायग्राम को अगर हम देखो दोबारा देखें, diagram that we have seen, this is the diagram, कि ये वो डायग्राम है. This is the diagram. I want to ask you few things here now. यहाँ पर कुछ चीजें मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, जैसे कि ये देखिए, ये डायग्राम है. इस डायग्राम में एक बात क्लियर है कि the charge particle is running in this direction. Suppose this is the magnetic field का direction. For the time being, I'll not consider its electric field. Electric field अभी मैं consider नहीं करूँगा. I'm just talking about the. So whenever the charged particle runs, whenever a charged particle moves in the magnetic field, some force will be acting on that. वो force किस तरह का act करेगा? अगर this theta is equal to case 1 theta is equal to 90 डिग्री होगा, theta is equal to 90 डिग्री और 270 डिग्री डिपेंडिंग अपॉन दैट. तो ये साइन थीटा जो होगा वो या तो 1 होगा या तो -1 होगा, और ये जो फोर्स होगा F, दैट विल बी परपेंडिकुलर. ये फोर्स परपेंडिकुलर होगा, ऊपर की दिशा में या नीचे की दिशा में होगा. इट विल बी गिवन बाय राइट हैंड रूल. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर. कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये दिस Fm विल बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ V बार एंड V बार. इस तरह का होगा. ये V बार का प्लेन है, V बार और V बार का ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, उसको परपेंडिकुलर होगा Fm.
दूसरी बात मैं करूंगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो साइन थीटा क्या होगा यहाँ पर, बिकॉज आई नो दैट द फोर्स इज गिवन बाय एफ एम is equal to QVB sin theta. I hope you understand that. So this sin theta will be equal to 0 in that case and the force will not be, there is no force at all. अगर ये force होता है यहाँ पे, this force is there, तो इस force की वजह से how the particle moves, particle कैसे move करेगा इस force की वजह से, what will be motion of the particle, charge particle का motion किस तरह का होगा. देखिए दोबारा हम एक बार यहाँ पर साइक्लोट्रॉन की तरफ जाते हैं. साइक्लोट्रॉन को अगर हम देखें इस तरह से, तो आई टेक दिस डायग्राम, 3D जो डायग्राम है इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर बात करते हैं. द स्पेशल केस दैट आई एम डिस्कसिंग अबाउट, ये रहा वो स्पेशल केस. देखिए यहाँ पे द फील्ड इज लाइक दिस. अगर वेलोसिटी इस तरह से होगा, इफ द चार्ज पार्टिकल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, चेक हियर प्लीज, अगर चार्ज पार्टिकल इस दिशा में जा रहा है, दिस इज बी बार, तो राइट हैंड रूल से टर्न द फर्स्ट वेक्टर towards the second vector with the help of curling of your right hand fingers. The outstretched thumb will give you the direction of the for resultant force. तो ये होगा, बराबर है ना. यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं. अगर चार्ज पार्टिकल इस दिशा में जा रहा है, ऐसे ऊपर की दिशा में अगर जा रहा है, तो इसकी वजह, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, देन कर्ल इट, कर्लिंग विल गिव यू दिस काइंड ऑफ फोर्स. बराबर है क्या, बराबर है क्या. तो दिस फोर्स इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इसकी वजह से द पार्टिकल विल टेंड टू गो फॉर द सर्कुलर मोशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? समझ में आया क्या. यहाँ पर भी जब ऐसी जाने की कोशिश करेगा तो वो पार्टिकल ऐसा जा रहा है लेकिन उसको ऊपर की दिशा में खींचा जा रहा है, तो इट विल परफॉर्म द सर्कुलर मोशन लाइक दिस. इस प्लेन में ऐसा वो सर्कुलर मोशन करेगा. यस और नो, समझ में आया सबको. सो इस तरह से दिस विल गिव राइज टू द सर्कुलर मोशन. द पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग द सर्कल. यहाँ पर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, तो ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, the particle will go straight, it will travel along the straight line. समझ में आ गई बात. Is this okay? यहाँ पर the particle will travel along the straight line, it will travel along the straight line. समझ में आ गया. तीसरा केस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, थर्ड केस, कि अगर वो पार्टिकल ऑब्लिकली जा रहा है, ऑब्लिक, तो क्या होगा. इफ द पार्टिकल इज गोइंग ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब देखिए जो अगला वाला केस यहाँ पर डिस्कस किया है, इट इज दिस, ये वाला केस क्या दिया है जी यहाँ पे. देखिए अगर गौर से देखिए, यहाँ पे तीनों एक्सिस दिए गए हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नाइदर अलोंग एक्स एक्सिस नॉर अलोंग वाई एक्सिस. चेक हियर प्लीज. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, the velocity of the particle is neither along x axis nor along y axis, लेकिन वो टेढ़ा ही है, कुछ तो अलग ही है. and the magnetic field is along the x direction, x दिशा में है. तो अगर ये है मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ना तो ऐसी है ना तो वैसी है. ऐसी होती तो वो परपेंडिकुलर हो जाती है, करेक्ट. ऐसा होता तो वो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है. बट थीटा इज ना तो 90 डिग्री है और ना तो 0 है. तो क्या है थीटा, थीटा इज सम अदर एंगल. तो इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट करते हैं, एक होगा v परपेंडिकुलर और दूसरा होगा v पैरेलल. कैन यू सी दिस, क्या लिखा है यहाँ पे, देख रहे हो आप लोग. यहाँ पे इसको उसके दो कंपोनेंट्स बनाते हैं हम लोग. कैन यू सी दिस. यहाँ पर थीटा जो है, जो वेलोसिटी है, velocity is having a component, this component is called as v parallel and ये component कहलाएगा v perpendicular. is this okay? समझ में आ गया. v parallel and v perpendicular. v parallel जो होता है, अगर velocity, अभी हमने ऊपर ही देखा है कि अगर वो parallel होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, v parallel velocity, if it is parallel, velocity is parallel to b bar, v parallel is parallel to b bar, तो इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं होगा. therefore the force due to the magnetic field is equal to 0. बराबर है ना. अभी हमने देखा. और v परपेंडिकुलर की वजह से क्या होगा बताइए.
v परपेंडिकुलर की वजह से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा एंड उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट विल बी गिवन बाय क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। बराबर है क्या? इजंट इट? और ये फोर्स कहां पर कैसे एक्ट करेगा बताइए प्लीज, कौन सी दिशा में एक्ट करेगा ये फोर्स? कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर। वी बार से बी बार की तरफ आप राइट हैंड कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड। आई वांट एवरीबॉडी टू डू दिस एक्सरसाइज। अगर आप कर्ल करते हो तो वो कर्ल करना है फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, मतलब v परपेंडिकुलर से इस तरफ अगर जाते हो तो आपको जो मिलेगा वो वेक्टर इज अलोंग द y डायरेक्शन। इज दिस क्लियर टू ऑल? सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, y डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? समझ में आ रहा है क्या? इजंट इट? सो द फोर्स इज गोइंग टू एक्ट। इफ आई शो हियर दिस फोर्स हियर, अगर ये फोर्स हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो देखिए ऐसा होगा, उसके जो कंपोनेंट्स होंगे, दिस इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दिस इज बी बार का डायरेक्शन एंड चार्ज इज मूविंग इन विच डायरेक्शन? एक मिनट, परपेंडिकुलर द परपेंडिकुलर वेलोसिटी मतलब इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो इस दिशा में आएगा। बराबर है ना? Isn't it? This is the direction of the force acting, Fm. This is the direction of the magnetic induction and this is V perpendicular. That is nothing but also current. The charge is running in this direction. Are you understanding that? Right hand rule से ये होगा. So this is X direction. This is your Z direction. तो ये होगा along Y direction. I hope this is clear to you all. I hope this is clear. अब देखिए ये force, velocity इस दिशा में जा रहा है और force उसको ऐसे खींच रहा है। इस वजह से प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हियर। क्या मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यहां पर इस फोर्स की वजह से दिस विल गिव राइज टू द ऑब्लिक, मतलब ये ऑब्लिक फोर्स यहां पर एक्ट कर रहा है। देखिए 3D पिक्चर आपको कैसे दिखाऊं इसका मैं। सो अभी जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार का केस है। देखिए यहां पर 3D पिक्चर मैंने बनाया है, दिस इज बी बार और वेलोसिटी ऐसा ना होते हुए वो थोड़ा सा टेढ़ा है ना? थोड़ा टेढ़ा है मतलब इस प्रकार है, ऐसा है वो वेलोसिटी, इस प्रकार है। तो उसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया एंड उसका पैरेलल कंपोनेंट होगा इस तरह का। यस और नो? दिस इज द पैरेलल कंपोनेंट। लेकिन इस पैरेलल कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स नहीं। अब देखिए ये वेलोसिटी टेढ़ा है, दिस इज द टोटल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी ऐसा, और ये होगा उसका परपेंडिकुलर पैरेलल टू बी बार एंड परपेंडिकुलर टू बी बार। पैरेलल कंपोनेंट की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? नहीं समझ में आ रहा है? चेक हियर वंस अगेन कि दिस इज बी बार और ये फोर्स अब के बार, होल्ड ऑन, चेक हियर, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ये डायग्राम में यहां पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। बी बार इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कैन आई से दिस इज एक्स डायरेक्शन? बी बार दिख रहा है यहां पे बी बार, एंड वेलोसिटी जो है पहले केस में वो वर्टिकल था, लेकिन यहां पर वेलोसिटी ऑब्लिक है। ऑब्लिक मतलब कैसे है भाई? कि भाई अगर ये है तुम्हारा एक्स डायरेक्शन और ये है तुम्हारा वाई डायरेक्शन, तो ऊपर की दिशा में आपका जेड डायरेक्शन होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है ना? ओके, तो अब यहां पे द डायरेक्शंस आर गोइंग टू बी लाइक दिस, दिस इज एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन और ऊपर की दिशा में होगा जेड डायरेक्शन। समझ में आया? इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं हम लोग। लेट्स, ये वाला साइड वाला डायग्राम है, लुक एट दिस प्लीज। या दिस डायग्राम। अब इसमें एक्चुअली ऐसा वेलोसिटी प्रीवियस था, लेकिन अभी का वेलोसिटी ऐसा नहीं है। अभी का जो वेलोसिटी है वो कुछ so the velocity is somewhat like this,
ये है एक्चुअली वी बार। समझे? इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हम कंसिडर करेंगे, एक होगा ऐसा कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू वी बार, सो आई विल कॉल दिस एज वी पैरेलल, और दूसरा कंपोनेंट होगा वी परपेंडिकुलर। इज दैट अंडरस्टूड? डिड यू गेट दैट? ठीक है, तो इन शॉर्ट इफ आई जस्ट वांट टू शो इट टू यू कि अभी का जो वेलोसिटी है वो कुछ इस प्रकार होगा जी, ऐसे। दिस इज वी बार, ओके, आई विल कॉल दिस एज वी बार, दिस इज वी परपेंडिकुलर, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वी पैरेलल, वो कुछ इस प्रकार होगा जी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। दिस इज वी पैरेलल, समझे? वी पैरेलल इज यहाँ पे पैरेलल है, तो वी पैरेलल की वजह से व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग? फोर्स एक्टिंग का फॉर्मूला आप मुझे बता सकते हो? डोंट लुक इट लाइक अ मूवी प्लीज, आपको फॉर्मूले बताने पड़ेंगे। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को? फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज गिवन बाय, कम ऑन, एफ एम। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ढूंढने में टाइम वेस्ट करेंगे। क्यू ए बी साइन थीटा, क्यू ए बी साइन थीटा। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे, लुक एट द बोर्ड प्लीज, look at the board. The force acting due to the magnetic field is given by q a b sin theta. So what is the angle right now? What is the angle between v parallel and v bar? V parallel, v parallel is a component of v bar. ये वाला component, ये parallel component है और perpendicular component है। please answer यार। angle force, हाँ, अरे भाई साहब मेरे को थीटा चाहिए, एंगल चाहिए। एक सेकेंड ना, ये थीटा भी हटा दीजिए। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं पता है आपको? ये कौन सा फॉर्मूला है? यहां पर इस वेलोसिटी को मैंने दो वेलोसिटी में डिवाइड कर दिया, ठीक है? पहला वेलोसिटी की बात करते हैं, पैरेलल वाले वेलोसिटी की। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वी पैरेलल एंड वी बार? 0 डिग्री, ठीक है? मैं वी पैरेलल की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो एंगल इज 0। साइन थीटा क्या होता है? 0। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, अगर साइन थीटा 0 है तो ये 0 आएगा, तो इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। अंडरस्टूड? ओके। अब मैं जा रहा हूं परपेंडिकुलर के लिए। परपेंडिकुलर कंपोनेंट है यहाँ पर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वी परपेंडिकुलर एंड बी बार? 90 डिग्री। वो दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, फैंटास्टिक। साइन थीटा इज इक्वल टू 1, सो व्हाट विल बी द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय क्यू वी बी। सही है। अच्छा, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। इसका तो मैग्नीट्यूड ही नहीं है, इसका तो कोई फोर्स है ही नहीं, इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं है, लेकिन इसकी वजह से कोई फोर्स है, एंड दैट फोर्स इज क्यू वी बी। अब उसका मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, विच विल बी डन बाय राइट हैंड रूल। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर। कौन सा है भाई फर्स्ट वेक्टर? यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर है वी परपेंडिकुलर, एंड सेकंड वेक्टर इज वी बार, वी बार जो कि इस दिशा में है। तो ये इस तरह से अगर आप कर्ल करोगे तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हियर? अंदर की तरफ है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ गया? अब देखिए, ऐसा है कि एक पार्टिकल है जो ऐसा टेढ़ा जा रहा है और उसको इस तरफ खींचा जा रहा है। ऐसा जाते जाते समय इसके ऊपर ऐसा वाला फोर्स भी एक्ट हो रहा है, मतलब वो ऐसे भी जा रहा है और इस फोर्स की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ भी हो रहा है, ऐसे भी जा रहा है और इस तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ भी हो रहा है। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये जो फोर्स है ना, दिस फोर्स कॉजेज द सर्कुलर मोशन, ये हमने पहले ही देखा है, करेक्ट ना? मतलब वो इस तरफ टेढ़ा जा रहा है, अगर ये वाला कंपोनेंट नहीं होता तो वो सिर्फ सर्कल में घूमता रहता। डू यू अंडरस्टैंड दैट? लेकिन इस कंपोनेंट के ऐड होने की वजह से, आई रिपीट कि अगर ये कंपोनेंट वेलोसिटी का नहीं होता तो वो सिर्फ ऐसा घूमता रहता सर्कल में, लेकिन सर्कल में घूमते घूमते उसको ये वाला वेलोसिटी भी है, तो वो ऐसा जाएगा ना। मतलब व्हाट विल हैपन हियर? सर्कल में भी घूमेगा लेकिन इस तरफ भी जा रहा है वो, तो विल दैट गिव यू हेलिकल उसका स्ट्रक्चर आएगा ना। डिड यू अंडरस्टैंड? दैट स्प्रिंग जैसा होता है वैसे जाएगा ना वो, अंदर 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 अंदर। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? क्या ये समझ में आ गया? सो विल दैट गिव
us this kind of structure? ये बताइए आप मुझे. So will it cause, ऐसा हेलिक्स आएगा? इंपॉर्टेंट था ये, इसके लिए मेरे को चिल्लाना पड़ा था थोड़ा, बट आई एम फाइन विद दैट. ठीक है ना. देखो अगर सिर्फ देखो ये जो फोर्स है ये कुछ काम नहीं कर रहा है, मतलब इसके वजह से कोई फोर्स नहीं आ रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी कंपोनेंट तो उसका रोल तो प्ले करेगा. अच्छा, इस वेलोसिटी की वजह से ऐसा फोर्स आ रहा है जो कि सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा, विच विल कॉज द सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन अलोंग विथ दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन, तो वो ऐसा जाते समय विल इट नॉट गिव यू द ऐसा हेलिक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तुमको उसकी वजह से. हेलो, दिस इज क्लियर. तो वो ऐसा जाने के वजह वो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस इट विल गो लाइक दिस ऐसा, और फिर दोबारा इस तरफ जा रहेगा, ऐसे ही जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा. इज इट नॉट? समझ में आया सबको? ठीक है. आई रिपीट, इसके वजह से सर्कुलर मोशन होगा और इस कंपोनेंट की वजह से वो आगे खींचा जा रहा है. तो सर्कल अगर हमें ड्रॉ करना है और उसको और एक इस तरफ उसको अगर डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, तो विल इट नॉट गिव यू द हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिक्स स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर? हाँ बोल दो. समझ में आ गया होगा तो फाइन ना. तो ये केस 3 जो हम डिस्कस कर रहे थे, लेट अस टॉक अबाउट दिस केस 3. यहाँ पर दो, हाँ बोलना. अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो सर्कल बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, एंड थीटा कुछ अडनीडा है, आई मीन इन बिटवीन है, कुछ इन बिटवीन वैल्यू है, तो दैट विल गिव यू द हेलिकल स्ट्रक्चर. इज दिस ओके? हाँ, इसके ऊपर एमसीक्यू आने वाला है, एनसीईआरटी में हम देखने वाले हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. वेल, ग्रेट. आई विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. सो दिस विल गिव यू व्हाट इज कॉल्ड एज द हेलिकल मोशन. अगला पार्ट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट. चार्ज जब चलता है तो उसी को तो करंट कहते हैं हम लोग. चार्ज जब चलता है तो उसी को करंट कहते हैं. तो यहां पे जो मैंने आपको बताया था ना कि भाई F, I'll consider the same diagram again. भाई if I consider the same diagram, तो यहां पे हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? नाउ व्हेन दिस चार्ज इज रनिंग, दिस इज एज गुड एज अ वायर इज रनिंग, वायर इज कैरिंग द करंट, इजंट इट? मैंने यहां पर एक्सप्रेशन लिखा था F बार इज इक्वल टू Q V बार क्रॉस B बार. चेक करिए प्लीज. यहां पे वेलोसिटी इज नथिंग बट देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट L बार with respect to time t cross B bar. I hope this is clear. Velocity is displacement upon time. Or can I say Q upon T is equal to I? So is it I L bar cross B bar? So this is one more formula that we should know. ये और एक formula है, ये पहला वाला तो है ही, लेकिन दूसरा वाला भी है. I L bar cross B bar. I L bar cross B bar. कुछ लोग इसको इस टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने उसको L, छोटा L दिखाया है जी. इधर गया रे, यहाँ टेक्स्ट बुक के अंदर दे आर कॉलिंग दिस एज कैपिटल L. मैंने यहाँ पर इसको छोटा L बोल दिया. वेल, आई कैन शो दिस एज कैपिटल L आल्सो, नॉट एन इशू. इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. आई होप दिस इज क्लियर. या दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इसको, VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. I'll call this as drift velocity. तो उन्होंने उसको V बार भी बोल सकते हैं, they can call this as V bar for the straight wire. तो यहाँ पर इन्होंने straight wire, consider the straight wire. ये straight wire है, इस straight wire के अंदर एक चार्ज है, ठीक है, we can say these are the electrons. तो जब करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, when the current is flowing in this direction, we know that the electrons are going to flow in the opposite direction with the drift speed. Conventional direction of current flow is exactly opposite to that of the current direction of electron flow. I hope you know this. जब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, तो उसका एक्चुअल मतलब होता है करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. यस और नो? फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. आई होप यू नो दिस. बराबर है ना? ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. करेक्ट है?
नींद आ रही है किसी को तो खड़े रहिए, प्लीज स्टैंड अप, बट यू गॉट टू आंसर यस नो बोलने पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, इज दिस क्लियर टू ऑल? तो इस तरीके से अगर हम इसको लिखते हैं, इस तरीके से अगर हम इसको लिखते हैं तो यही फॉर्मूला बन जाएगा आई एल बार क्रॉस बी बार, एंड इफ आई राइट डाउन दिस इन द स्केलर फॉर्म, दिस विल बिकम आई एल बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज दिस एंगल अगेन। तो यहां पर इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी एंड चार्ज आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज आई, और ये जो वायर है उसके लेंथ को मैं बोलूंगा एल बार, उस वायर के लेंथ को या उसको डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा मैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, लेंथ वेक्टर हम इसको बोलेंगे लेंथ वेक्टर, एल बार इज कॉल्ड एज लेंथ वेक्टर, वायर का लेंथ वेक्टर है। एनी डाउट्स अबाउट दिस? इज दिस ओके? चलिए ये हो गया स्ट्रेट वायर के बारे में ऐसा, लेकिन अगर वायर किसी आर्बिट्ररी लेंथ का हो तो, आर्बिट्ररी शेप ऑफ वायर, ऐसा अगर वायर का शेप है तो भाई उसके लिए क्या करेंगे, तो उस वायर के मुझे छोटे छोटे हिस्से करने पड़ेंगे। सो दिस इज द स्मॉल पार्ट, आई विल कॉल दिस एज डी एल बार, इसको हम छोटा सा पार्ट क्या बोलेंगे, डी एल बार ऐसा बोलेंगे। अच्छा, तो अब यहां पर समझो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा भी दिखा सकते हैं या फिर ऐसा भी दिखा सकते हैं, आपको पता है ना ये इसका डायरेक्शन कहां पर है और इसका डायरेक्शन कहां पर है, दिस इज इन द प्लेन एंड दिस इज आउट ऑफ द प्लेन, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, उल्टा बोला आपने, दिस इज आउट ऑफ द प्लेन एंड दिस इज इनटू द प्लेन। क्रॉस जो होता है कैसे डिसाइड होता है वो पता है आपको, एरो, एरो की वजह से ना, अगर इस एरो को हम इस एरो को अगर यहां से देखते हैं सामने से, दिस इज एन आई ऑफ द ऑब्जर्वर, अगर वो उसको यहां से देखेगा तो उसका ऐसा डॉट नजर आएगा, समझे क्या? और वही ऑब्जर्वर उसको यहां से अगर देखता है तो उसको एक क्रॉस की तरह नजर आता है। ये नहीं दिखाता हूं ना तुमको, देखो ऐसा होता है, ये समझे क्या? पीछे का हिस्सा इट विल बी लाइक दिस ना, हाँ तो अभी क्रॉस, इज दैट क्लियर? वी नहीं दिखेगा है ना, ऐसे दो दिखाई, लेकिन उसका 3D पिक्चर गॉगल लगाओ ना तुमको ऐसा दिखाई देगा, देखो ठीक है ना, फेयर इनफ, ये कन्वेंशन है, दिस इज द कन्वेंशन, सो दिस विल बी सीन लाइक अ क्रॉस, इज दैट क्लियर? ओके, कमिंग बैक टू, तो यहां पर अगर ऐसा होगा तो छोटा सा अगर हिस्सा है वायर का, तो यहां पर द मैग्नेटिक फील्ड इज बी बार and the very small part of the wire which is dl bar, this is the length vector for the wire. So magnetic field because of that is also very, the force is also very small, dfm bar is equal to I dl bar cross b bar, इस तरह से वो दिया जाएगा I dl bar cross b bar. Is that clear to you all? और बाकी सब सेम है, साइन कन्वेंशन, राइट हैंड रूल, वो सब सेम ही है, वैसा ही दिया जाएगा। Is that clear? और अगर छोटे छोटे हिस्सों को अगर मैं जोड़ के फाइंड आउट कर लूंगा तो दैट विल गिव मी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर एफएम बार इज इक्वल टू इंटीग्रल इफेक्ट ऑफ दिस डी एफ एम बार, एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई डी एल बार क्रॉस बी बार। इज दैट ओके? ये उसका इंटीग्रल इफेक्ट होगा, आई हैव टू इंटीग्रेट दिस ऑल। समझ में आया सबको? ठीक है, चलिए, तो ये इंटीग्रल इफेक्ट अगर हमें मुझे अप्लाई करना है तो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, फोर्स ऑन द क्लोज्ड सर्किट। अगर क्लोज्ड सर्किट होगा यहाँ पे, इफ इट इज अ क्लोज्ड सर्किट, तो ये जो इंटीग्रल इफेक्ट होगा, हाउ दिस इज गोइंग टू चेंज, ये हम देखेंगे अभी। सो इफ इट इज द क्लोज सर्किट, तो हाउ इज दिस गोइंग टू चेंज? तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा एफ एम बार is equal to cyclic integral of I dl bar cross b bar। ठीक है, इसमें से I is a constant, so I'll take it out। अब ये जो इंटीग्रल है, if it is a closed circle, ऐसा एक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि भाई अगर ये क्लोज सर्कल होगा या क्लोज सर्किट होगा, देखिए ठीक है, ये ऐसा क्लोज्ड वायर है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। तो
इसे समझो कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इट्स अ क्लोज सर्किट, और यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो कि समझो बाहर की तरफ आ रहा है। इसी डायग्राम को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, ठीक है, लेकिन ये क्लोज्ड है। इफ इट इज अ क्लोज सर्किट में आई विल कम आउट, एंड इसे हम साइक्लिक इंटीग्रल लेते हैं, क्योंकि ये सर्कल जो दिखाता है या सी लिखते हैं यहाँ पे, इट मीन्स द इंटीग्रल ओवर द कंप्लीट साइकिल। इसमें से आई विल टेक आउट इंटीग्रेशन ऑफ dl बार ओवर द कंप्लीट सर्किट, साइक्लिक इंटीग्रल आई विल कॉल इट एज क्रॉस b बार। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, ये जो है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dl बार क्या होता है जी, आपको बता दूं। dl बार एक्चुअली इट्स अ, समझो कि अगर मुझे इंटीग्रेट करना है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर, तो ये dl बार जो है इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। सो आई विल ज्वाइन डायरेक्टली दिस थिंग। इसको मैं डायरेक्टली अगर ज्वाइन कर लूं तो वो मुझे dl बार का वेक्टर दिखाएगा। दिस विल बी द वेक्टर dl बार फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अगर मुझे यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? अगर वो साइकिल है और वो साइकिल यहां से शुरू होकर यहीं पर खत्म होता है, then this cyclic integral will yield me 0. Is this clear? क्योंकि कंप्लीट साइकिल के अंदर द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, इट्स लाइक अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसलिए अगर एक क्लोज सर्किट है तो फोर्स एक्टिंग विल बी 0. दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी which we are going to use while solving the numericals. Is that clear? And I think it's time for us to go for the NCERT questions. I'll go for the NCERT questions now. ठीक है? Beginning with that. So let's begin with the NCERT questions. Question number 1, magnetic force. क्या दिया है यहाँ पे? When the magnetic compass needle is carried nearby to the straight wire carrying current, compass needle, तो the straight wire causes the noticeable deflection in the compass needle. क्या अगर इसके अंदर करंट है तो it will definitely show some noticeable deflection in the compass needle. ये सही है. The alignment of the needle is tangential to the imaginary circle with straight line as its center and has the plane perpendicular to the wire. ये आई एम श्योर आपको कुछ समझ में नहीं आया, क्या आ गया? तो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, आ गया समझ में? देखिए इस तरह का होगा ये। यू टेक द कंपास एनीवेयर, आप कंपास कहीं भी लेके जाइए, इसमें कंपास विल ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, करेक्ट ना? तो कंपास विल बी ऑलवेज टेंजेंशियल, हमेशा द अलाइनमेंट ऑफ निडल इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू एन इमेजिनरी, नाउ दिस इज द इमेजिनरी सर्कल, और इस इमेजिनरी सर्कल का ये जो स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट है, दिस विल बी द एक्सिस. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल नाउ आफ्टर ड्राइंग द डायग्राम. द कंपास विल ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार, बराबर है ना? टेंजेंशियल जो होगा जो कि बी बार है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सी इज द आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. Yeah, I think this is a half star question, है ना? Next question. Which of the following is not correct about Lorentz force? Lorentz force क्या होता है? It's nothing but force due to the electric field plus force due to the magnetic field, which is given by Q times E bar plus V bar cross V bar. This is Lorentz force, अगर आपको याद होगा, सही है? Isn't it? So which of the is not correct? तो ये जो लिखा है, this is correct formula is given by this, ये correct है. The force due to E is a function of R. जब हम बोलते हैं कि y is equal to f of x, इसको हम y of x भी लिखते हैं कई बार, तो इस तरह से E which is a function of R, R is a radius vector, it can be. समझ में आ गया? It's changing from place to place, it's not constant, we can say. The presence of electric and magnetic field, the force is given by this, ये correct है. दूसरा क्या दिया है उन्होंने? Which is not correct they are asking, ना? So this is not the answer.
ये नॉट करेक्ट है, सो ये आंसर, ये करेक्ट है इसलिए आंसर नहीं है. द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू दैट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. सही है ना, करेक्ट है ना. नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्सेस होंगे वो अपोजिट होंगे, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स जीरो इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और एंटी पैरेलल. थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री. तो ये जो फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 0 आएगा, ये भी सही है ना. साइन थीटा 0 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं है. द फॉर स्टैटिक चार्ज मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम. स्टैटिक चार्ज, चार्ज अगर स्टैटिक है मतलब वेलोसिटी 0 है. अगर वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0 होगा, तो वो मैक्सिमम कैसे होगा. ये गलत बोल रहा है, इसलिए ये सही आंसर है. डिड यू अंडरस्टैंड दैट. मुझे लगता है ये भी इतना आसान नहीं था. वॉज इट अ डिफिकल्ट वन और इजी वन. तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको इस चैप्टर में बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा. और 3 चैप्टर्स में अभी जो हमारे चल रहे हैं उसमें 3 चैप्टर्स. ये एक चैप्टर ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला चैप्टर था जिसमें आपको बहुत सारी वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड दिस. जबरदस्त है ये तीनों चैप्टर्स. ठीक है, वेव ऑप्टिक्स ये और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये स्टार चैप्टर्स है. ये फिजिक्स सेक्शन 2 के भयंकर वाले चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ. तो इसमें आपको यू रियली हैव टू बी वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस. अगला चैप्टर नहीं, मतलब ये डिफिकल्ट नहीं, आपको ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा. यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज थ्रू आउट. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड. कीप अप विद द फॉर्मूला. ठीक है, फॉर्मूला नहीं आ गया तो फिर आप लोगों को बत्ती गुल हो जाएगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. A strong magnetic field is applied on a stationary electron. भाई अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होगा तो मतलब वेलोसिटी इज 0. Then electron it remains stationary. Why? Because there is no force acting. समझ में आ गया क्या. फोर्स कब एक्ट होएगा. When it moves with certain velocity. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. In an inertial frame of reference, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप लोगों ने इसके बारे में कहाँ सुना है. न्यूटन्स लॉज. द मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इज F bar. इट्स वैल्यू इन अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी. वेल इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेक यू नो. या दिस इज पार्ट ऑफ H.C. वर्मा. H.C. वर्मा का थैंक यू फॉर साइलेंस. या दिस इज H.C. वर्मा's जो बुक है उसमें से ये उठाया गया है. टू अंडरस्टैंड द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज द स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. यहाँ पर एक चार्ज Q है. If this charge is moving, is having velocity in this direction, तो क्या होगा इस वजह से. अगर उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसकी वजह से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा. बिकॉज ऑफ दिस करंट देयर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग रीजन. यस और नो. समझ में नहीं आ रहा है. ये देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा. What will be the direction of that magnetic field? इस तरह से टेंजेंशियल होगा ना, वो टेंजेंशियल होगा, ऐसे टेंजेंशियल होगा ना वो. So this is the direction of B bar V से. आपको मैं इसको here यहाँ पर this is the charge, this is the current which is carried by this conductor. इस कंडक्टर के करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा which is in this direction, which is given by right hand rule. Can you understand that right hand rule? समझ में आ रहा है क्या right hand rule? right hand rule मतलब वहां पर B bar एक्ट होगा. अब यहाँ पर एक चार्ज है Q. This is the charge Q which is moving, trying to move in this direction. तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है. इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज is moving with certain velocity V. चार्ज इज मूविंग, तो वहां पर फोर्स एक्ट करेगा, उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा. एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स.
इट इज गिवन बाय राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में पहले रेडीमेड दिखाता था, लेकिन यहाँ पर अब मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से आया है, करेक्ट। तो और चार्ज है वहां पर, दिस चार्ज इज क्यू, इट इज ट्राइंग टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी v। तो इस वजह से इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पर एक इस तरह का एक फोर्स आएगा, इट विल बी एक्टिंग द फोर्स विच इज एक्टिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से। समझ में आ रहा है? इट विल हैव द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। ओके ओके, देखो यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, q v bar क्रॉस v bar। तो कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर। v bar से b bar के डायरेक्शन में अगर आप टर्न करोगे तो अंदर की तरफ ये फोर्स एक्ट करेगा। सो दिस इज दैट मैग्नेटिक फोर्स। इज दिस क्लियर? यस और नो? ये समझ में आ गया सबको? दिस इज ओके, श्योर? ऐसा होगा। नाउ दिस इज व्हाट इज ऑब्जर्व्ड बाय दिस पर्सन। दिस इज वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम क्या करेंगे, दूसरा एक पर्सन है जो एक लिफ्ट के अंदर है, कंपार्टमेंट के अंदर है। जैसे ही ये जो चार्ज Q है, दिस इज चार्ज Q ऑफ कोर्स, ये जो चार्ज Q है जैसे ही इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस ऑब्जर्वर को भी हम ऊपर की दिशा में भेज देते हैं उसी स्पीड से। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो क्या इस ऑब्जर्वर के हिसाब से इसका वेलोसिटी और इस ऑब्जर्वर के हिसाब से इसका वेलोसिटी आर दे सेम और डिफरेंट? एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर वेलोसिटी दोनों के हिसाब से इस पार्टिकल के डिफरेंट है तो द फोर्स एक्टिंग विल बी डिफरेंट। बस इतना ही मुझे समझाना था आपको। सो यहां पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन। दीज टाइप्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस दे आर कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पे इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इज F bar। इट्स वैल्यू इन अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, विल बी remaining same or it changed due to the change in amount of charge, change due to the change in the velocity of charged particle. So I think C is the answer. Is that understood? Now where have we talked about the inertial and non-inertial frame of reference? Let me tell you, inertial frame of reference and non-inertial frame of reference, ऐसे दो frames of reference होते हैं, inertial और it is also called as fixed frame of reference, frame of reference। दूसरा frame of reference होता है non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference। This is sometimes also called as accelerated frame of reference, accelerated frame of reference। ठीक है, इसका ये जो होता है ये फिक्स होता है या फिर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसका एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है इसका। इज दैट क्लियर? इसके एग्जांपल्स मैंने लास्ट ईयर आपको बताए थे 11th में जब हम पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलो मैं आपको याद दिला देता हूं दोबारा इसको। या लेट अस कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनसीईआरटी अगला क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप फटाक से इसका आंसर बताइए। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर वगैरह वगैरह इज गिवन बाय, व्हाट इज दैट फोर्स? F बार, ये क्या है ये? F बार इज इक्वल टू I L बार क्रॉस B बार, I L बार क्रॉस B बार इज C इज द आंसर, करेक्ट ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैं कॉपी भी नहीं करूंगा वहां पे, इट्स ओके, इट्स फाइन ना। अब आएगा मजा, क्वेश्चन चालू हो गया जी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अरे भाई साहब ये क्या आ गया?
क्या दिया है बाबा क्वेश्चन, पढ़िए। फॉर्मूला वही है, क्यू वी बी साइन थीटा बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा एंड क्यू वी बी साइन थीटा। स्ट्रेट कंडक्टर हैविंग मास, कितना मास है उसका 1.2 kg एंड लेंथ 1 मीटर, carries a current of 5 ampere. If the wire is suspended in the mid-air by uniform horizontal magnetic field, then the magnitude of the field is, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। देखिए ऐसा है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ऐसा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर एक वायर ऐसा टंगा दिया, वायर इज सस्पेंडेड। ओके, दिस इज द वायर, एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा यहाँ पे एंगल, करेक्ट। अब यहां पे वायर सस्पेंडेड इन द मिड एयर, वायर को सस्पेंड किया हुआ है। इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस वायर, अब देखिए इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, इस करंट की वजह से इसके ऊपर व्हाट इज द करंट देयर, द करंट इज 5 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, इट्स अ स्ट्रेट वायर। तो इसकी वजह से क्यू वी बी साइन थीटा एक्ट करेगा इसके ऊपर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, ऑफ कोर्स ऊपर की दिशा में, करेक्ट ना। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर, यह है फर्स्ट वेक्टर, यह है सेकंड वेक्टर। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, which will be equal to क्यू वी बी साइन थीटा, या तो फिर इसको बिल भी बोल सकते हैं, बी आई एल, बिल, बिल या क्यू वी बी, बात तो एक ही है। अच्छा, ये तो है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन इसके ऊपर इसका वेट भी तो नीचे एक्ट कर रहा है। व्हाट इज द वेट ऑफ दिस वायर, यम जी। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग, बिल इज इक्वल टू यम जी, बस सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। बी मुझे फाइंड आउट करना है, सो बी इज इक्वल टू एम जी अपॉन आई एल, समझ में आ गया। एम मास 1.2 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 ले लेते हैं, I current is 5 ampere and length of the wire L is equal to 1 meter. So this is actually 12 upon 5, 5 to the 10, 2.4 Tesla. C. Is this okay? Any doubts about that? Very simple. समझ में आया सबको? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जो थियरी पार्ट है, इसलिए मैंने वहां पे पॉज किया एंड आई थॉट ऑफ लाइक स्विचिंग टू द न्यूमेरिकल्स नाउ। सेम, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला वाला। अभी आपको मैंने साइक्लिक लूप के बारे में कुछ बताया था, साइक्लिक लूप के बारे में, करेक्ट, कि भाई सर्कुलर लूप अगर होता है तो इसका आंसर क्या कैसे करते हैं फाइंड आउट। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r carrying current I is placed in the uniform magnetic field perpendicular to the loop, uniform magnetic field perpendicular to the loop। सर्कुलर लूप ऐसा मान के चलते हैं कि भाई कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी है जैसा भी है, और इसके अंदर एक सर्कुलर लूप है। चलिए ऐसा लूप है, ठीक है। ये अगर लूप है तो एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट की अगर बात करें, दिस इज डीएल, बराबर है क्या, दिस इज डीएल बार एंड दिस इज बी बार। हेलो, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग इज गिवन बाय, इसके अंदर करंट है I, सो इट विल बी I डीएल बार क्रॉस बी बार का टोटल इंटीग्रेशन, करेक्ट, राइट ना। नाउ दैट इज इक्वल टू I इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बार, इफ आई डू द साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ दिस डीएल बार, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था साइक्लिक इंटीग्रल की, यहां से यहीं पर वो पूरा का पूरा आता है, तो जो वेक्टर आएगा, लेंथ वेक्टर आएगा, वो 0 आता है, इसलिए ये फोर्स 0 आता है और इसलिए आंसर 0 आता है। इज दिस ओके? हैव आई टॉक्ड अबाउट दिस? इज दैट ओके? यप। अगला क्वेश्चन, I'll go for the next question now. Question number 8, homework है ये। Question number 8 is just like question number 5.
बिल्कुल 5 के जैसा ही है। डायरेक्ट मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, दिस इज होमवर्क टाइप क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 नहीं, क्वेश्चन 6 जैसा ही है। 2.5 मीटर लॉन्ग वायर having mass of 500 gram suspended in the mid-air by the horizontal magnetic field B. Current in the wire is 4 ampere. Then the magnitude of the field is same ना, exactly same है। इसका आंसर है 0.5 टेस्ला। अगला क्वेश्चन, हाँ मतलब ये होमवर्क है आपके लिए, मैंने छोड़ दिया, सिर्फ नंबर बदले हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग, करंट ऑफ 10 एम्पियर flowing in the wire of length 1.5 मीटर। करंट कितना है भैया? 10 एम्पियर, लेंथ ऑफ द वायर इज 1.5, द फोर्स of 15 Newton act on it when it is placed in the uniform magnetic field 2 Tesla. B is equal to 2 Tesla. The angle between the magnetic field and the direction of the current. या और बिल साइन थीटा। आप ये जो फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स, आप इसको क्यूवी भी साइन थीटा लीजिएगा या बिल साइन थीटा लीजिएगा, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्लोइंग इन द वायर लेंथ एक्ट्स इन द प्लेस, हाँ तो ये है समझो कि मैग्नेटिक फील्ड और ये है समझो कि वायर, ठीक है ना, इट्स कैरिंग करंट आई। अब इनके अंदर बीच में एंगल है थीटा और इन्होंने बोल दिया कि भाई ये फोर्स कितना दिया है यहाँ पे 15 न्यूटन। सो आई विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो व्हाट इज साइन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन बिल। फोर्स कितना है 15, बी इज 2, 1.5, आई is 10, so this will become half। ऐसा कौन सा एंगल है? 30 डिग्री ना। so the answer is A। is this okay? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको स्टार वार कुछ नहीं बोलूंगा मैं, दे आर जस्ट ऑफ द टाइप फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सबको क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। horizontal component of Earth's magnetic field, the horizontal component of Earth's magnetic field at certain place BH, horizontal component of Earth मतलब B का वैल्यू है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, having the direction from geographic south to north pole। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में होता है रे? डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अर्थ इज इटसेल्फ अ मैग्नेट और उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा डायरेक्ट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द फोर्स पर यूनिट, इसके डिटेल्स हम देखने वाले हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर। द फोर्स पर यूनिट लेंथ F अपॉन L या स्मॉल l बोलिए, क्या फर्क पड़ता है, ऑन अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 1.2 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन इज, ये पूछा गया है, एंड दिस करंट इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। अब कैसे करेंगे बताइए? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई कैन से दैट वेल दिस इज द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ये होगा वेस्ट और ये ईस्ट, सही है ना? हेलो, ऐसे होगा ना जमीन पर अगर देखेंगे तो। चलिए, तो इन्होंने यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी बार एंड दिस इज कैरिंग द करंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ये रहा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करेक्ट? नहीं, हाँ तो ये जो एंगल है वो कितना होगा 90, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए अब मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द फोर्स
The force is given by Bill sin theta. Bill sin theta. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है उन्होंने, इज इक्वल टू बी साइन थीटा. बी is BH 3 into 10 raised to minus 5, I 1.2 and sin theta is 1. So this will be 3.6 into 10 raised to minus 5 Newton per meter. 3.6. Is this clear to you all? Any doubts about that? Easy, बहुत सिंपल है. डाउट है तो मुझे पूछ लो. 12 का टेबल अगर हम 3 तक गिनेंगे तो वो 3.6 आएगा. 12 3 जा 36. बराबर है? ठीक है. फील फ्री टू आस्क मी, मेरे को पूछने का. इट्स ओके, क्योंकि वो भी पहली बार ही 12 कर रही है ना. मैं पिछले 22 साल से 12th ही कर रहा हूँ. पास होने का नाम ही नहीं ले रहा हूँ. हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं. पास ही नहीं हो रहा हूँ, क्या करूं. अगला क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गो फॉर. So before I go for this question, let me talk about what is meant by a solenoid. सोलेनॉइड पता है आपको? अच्छा मेरे को जरा एक्सप्लेन करो ना, मेरे को डाउट है इसमें. I'll say solenoid is a very long coil. ये coil है, बहुत लंबा coil है. The length is more as compared to its diameter. This is called a solenoid. ठीक है. And इस solenoid के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, बिकॉज दिस इज कैरिंग सम करंट, इसी चैप्टर में आगे जाके हम देखने वाले हैं द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड. हाँ, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड लाइक दिस. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड. इट्स एक्टिंग अलोंग इट्स एक्सिस. ठीक है, ऐसा होता है सोलेनॉइड. सोलेनॉइड कुछ भी, some people call it solenoid, whatever, I mean solenoid. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे they say an 8 centimeter long wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. अब देखिए इसके अंदर एक वायर रखा है, कितना बढ़िया है, देखो ना, बहुत मस्त. अभी आ जाए भाई. इसके अंदर एक वायर रखा है यहां पे. तो वी से द वायर इज ओवर हियर. ऐसा 8 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस. एक्सिस को परपेंडिकुलर, समझे ना, ऐसा वायर है. एंड दिस वायर इज हैविंग लेंथ कितना, 8 centimeter. What the current it is carrying? 10 ampere. And what is the angle between the current carrying conductor and this? Theta is equal to 90 degree. समझ में आ गया? What formula? Bill sin theta. If the magnetic field inside the solenoid is 0.3 Tesla, B, then what is the magnetic force? The formula is Fm is equal to Bill sin theta. Bill sin theta. So B 0.3, I is 10, length is 8, 8 मतलब 0.08, sin theta is 1. तो ये कितना आएगा, 24, 8 is 24, 240, 1 2 3, 1 2 3, 0.24 न्यूटन is the answer. This is so very easy. बहुत सिंपल क्वेश्चन से आपको बता रहे हैं ना, वेरी इजी क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Any doubt so far? नहीं ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना. वेरी गुड, वेरी गुड. वैसे तो चैप्टर में 100 है ना, हर देखते हैं, टॉस करते हैं, क्या करना है. अगला क्वेश्चन.
जी देखिए, सही बोला आप लोगों ने, करेक्ट है। द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब Fm अपॉन L on a wire carrying current of 10 ampere making an angle of 45 degree. The direction of uniform magnetic field point to homework है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप क्वेश्चन नंबर 11 के टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ इसका आंसर बी था, जो पहले था उसका आंसर बी था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। हाँ, a circular coil of 20 turns, a circular coil of 20 turns, n number of turns is 20 and radius 10 centimeter, r is equal to 10 centimeter 0.1 meter, is placed in uniform magnetic field of 0.1 Tesla normal to the plane of the coil. If the current in the coil is 5 ampere, cross sectional area of the coil is 10 raised to minus 5 meter square and coil is made up of copper having free electron density. Wow, free electron density I'll call this as rho, is equal to 10 raised to 29 meter per meter cube electron density, that is number of electrons, I can say number of electrons. Then the average force on each electron in the coil due to the magnetic field is. मस्त क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स बनता है। हाँ, दिस इज स्टार क्वेश्चन। टोटल फोर्स वुड हैव बीन 0, क्यों? सर्कल क्लोज्ड है ना। अब देखिए यहां पे ऐसा मान के चलते हैं कि भाई दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इससे परपेंडिकुलर है हमारा कॉइल, दिस इज द कॉइल। इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज B इज इक्वल टू व्हाटएवर करंट इज फ्लोइंग इन द कॉइल I, एंड एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया है इसका, करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 raised to minus 5 कॉइल, इस करंट कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया बताया गया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताइए कि आप इसका छोटा सा हिस्सा लीजिएगा, यू टेक एनी यू कंसिडर एनी पार्ट ऑफ इट, तो व्हाट विल बी थीटा फॉर दिस। अगर यहाँ पर कोई भी पार्ट अगर आप कंसिडर करते हो तो उसका जो लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। अब फोर्स के दो फॉर्मूले होंगे जी, एक है QAB साइन थीटा, या तो मैं इसको बिल साइन थीटा भी बोल सकता हूं, करेक्ट ना, बट इन बोथ द केसेस दिस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा आएगा। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द चार्ज एक्टिंग ऑन दैट, चार्ज एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। सो अब अगर मैं चार्ज फाइंड आउट करना चाहता हूं, आई विल कंसिडर अ वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ दिस वायर, थोड़ा सा उसका अगर मैं लेंथ कंसिडर करूं, सम पार्ट ऑफ इट्स लेंथ, let us say that I am considering the L length of the wire, L length of the wire, तो इस L length of the wire में कितना चार्ज होगा? देखिए this is the electron density 10 raised to 29 per meter cube, 1 मीटर क्यूब के अंदर इतना है, तो 2 मीटर क्यूब के अंदर इंटू 2, 5 मीटर क्यूब के अंदर इंटू 5, ओके। लेकिन L लेंथ का वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इस वायर का लेंथ जो है वो L है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वायर? इट इज इक्वल टू A इंटू L, और इस वॉल्यूम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इट विल बी रो इंटू V। अगर 1 मीटर क्यूब में रो है तो 2 मीटर क्यूब में 2 रो, 5 मीटर क्यूब में 5 रो, एंड V मीटर क्यूब में रो V रो, yes, isn't it? That means it will be rho AL. Is this okay? These are the number of electrons. These are the number of electrons. Did you understand that? These are number of electrons. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर माइनस E है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा E रो AL. एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आया? दिस विल बिकम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना,
Q is equal to E. So what I'll write here? It will be E into rho into A into L. ठीक है, this is Q into V into B. Sin theta is equal to 1. ये तो आ ही गया है, अपने को पता है. So this is the force acting. Is this okay? Any doubts about that? समझ में आया सबको? Okay. अच्छा, अब यहां पर मैं बात कर लूं, यहां पर मैं बात कर लूं अगर कि what will be, अब अगर मैं ये यूनिट लेंथ ऑफ वायर लेता हूं, I'll take this length of wire as 1 meter, this length of wire is 1 meter. अगर ऐसा लिया, अगर या तो फिर L ही ले लेते हैं, आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए, चलिए कोई नहीं. नाउ दिस फोर्स इज आल्सो गिवन बाय दिस, तो ये वाला फोर्स क्या आएगा? BIL, बिल, करेक्ट. ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, दोनों भी फोर्स ही है ना, तो दोनों को इक्वेट कर लेता हूं मैं, बराबर है क्या? सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? इफ आई इक्वेट देम, क्या मिल जाएगा यहां पर? इफ आई इक्वेट देम, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? फोर्स पर इलेक्ट्रॉन, I'll say E rho AL VB upon BIL. One second. Force per unit length. Nine FM. NA. या इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर लूं तो क्या मिल जाएगा? दिस विल बिकम E rho AL into VB is equal to BIL. इसमें से L gets cancel, ठीक है, L is equal to 1 लिया तो वहां पर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए रे इसके अंदर? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऑन दिस? E rho A, ये 3 हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है ना? एंड दैट फोर्स विल बी गिवन बाय BI upon NA. नहीं, लेकिन अपने को फोर्स पर चाहिए ना, एक सेकेंड ना, I'll just the force per electron will be given by BIL upon rho AL. L gets cancelled. What is B? 0.1. Current 5. Rho is 10 raised to 29, and area is cross sectional area 10 raised to -5. तो कुल मिलाकर क्या आएगा बताइए? 5 into 10 raised to, ये आएगा 24, ऊपर जाके -24 -1 -25 न्यूटन, है ना? 5 into 10 raised to -25 न्यूटन. इज दिस ओके? बाकी दूसरा वाला लेने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को, बस इतने ही से ही चल गया. टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज फाइन. समझ में आ गया कि बाउंसर गया? सब लोगों को रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है ये, देखिए. रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD is the coil. A rectangular coil ABCD is hung from one side of a balance as shown in the figure. ऐसे उसको हैंग किया. A 500 gram mass is added to the other arm to balance the weight of the coil. फिलहाल वो balanced है. Right now it is balanced. Okay. A current of 9.8 ampere is passed through the coil. इसके अंदर 9.8 ampere current पास किया, ठीक है. And a constant magnetic field of 0.4 Tesla is acting inward in the xz plane. क्रॉस दिया है देखो यहाँ पर, it is inward perpendicular. So what is the magnetic field there? B is equal to 0.4 Tesla inward in such a way that is switched on such that only arm CD, only this arm CD is in the field of length 1.5 centimeter. Length of this CD is 1.5 centimeter, lies in the field. The additional mass M must be added to regain the balance is. यहाँ पर इसमें कुछ मास ऐड किया जाएगा, वो कितना होगा?
टू रिगेन द बैलेंस। मतलब पहले करंट जब फ्लो नहीं हो रहा था तो 500 ग्राम उसको बैलेंस कर रहा था, आपने को क्या फर्क पड़ता है, बैलेंस हो रहा था। करंट फ्लो होने की वजह से इसमें मास m ऐड करना पड़ेगा। लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बिकॉज ऑफ दिस। इसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कौन सा होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग हियर, और उसका मैग्नीट्यूड होगा उसका बिल साइन थीटा। अब देखिए करंट इसमें कैसे फ्लो हो रहा है, अगर आप इसको देखते हो, इफ यू लुक एट दिस, तो समझो कि अगर ये CD है, द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस C to D, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेपर के अंदर जा रहा है ना ऐसे, isn't it? The magnetic field is inside, inward, ऐसा है वो, देखिए ऐसा है ना मैग्नेटिक फील्ड B बार, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ L बार V से, करेक्ट ना, L बार या V बार बोल सकते हैं। तो कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर। देखिए फोर्स इज गिवन बाय Q V बार क्रॉस B बार। आप देखिए इसको गौर से, Q V बार क्रॉस B बार ऐसा होता है, या तो फिर वो I L बार क्रॉस B बार ऐसा होता है। तो यह है डायरेक्शन ऑफ L बार बोलो या V बार बोलो। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर। नाउ बाय द वे व्हाट इज एंगल हियर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ना, 90 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। कर्ल द फिंगर्स, तो ये डाउनवर्ड होगा ना, डाउनवर्ड होगा। फोर्स कौन सी दिशा में होगा जी, हेलो जाग रहे हैं क्या, सो गए? सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग हियर Fm, यस और नो, दिस इज द फोर्स Fm। तो ये फोर्स इसको नीचे खींचेगा, तो उसको बैलेंस करने वाला फोर्स चाहिए अपने को, तो Fm इज इक्वल टू mg, Fm इज इक्वल टू mg। मेरे को एक्चुअली ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है इन्होंने 500 ग्राम, पॉइंट ही नहीं है उसका, समझ में आ गई बात। चलिए बताइए, अब साइन थीटा तो हो गया, तो मुझे यम चाहिए, तो व्हाट इज यम इज इक्वल टू बिल अपॉन जी, बिल B 0.4, लेंथ 1.5 इंटू 10⁻⁻², ऐसा यूनिट्स, L अच्छा वो I था, दिस इज 9.8, ठीक है। और इस बार मैं 9.8 ही लूंगा ताकि वो कैंसिल हो जाएगा G का वैल्यू, इतना तुम्हारे लिए पूरा सेटिंग करके दिया है, G गेट्स कैंसिल्ड। तो व्हाट इज द आंसर हियर, 15 चौक 60, 60.6 इंटू 10⁻², और इट इज 15 4 द 60, मराठी है ना, सो दिस बिकम्स 6 इंटू 10⁻³ kg, और इट विल बी 6 ग्राम, एंड दैट्स द आंसर। इज दिस ओके? अब मुझे पता नहीं आप लोग इसको क्या बोलना चाहोगे, स्टार, हाफ स्टार? मेरे ख्याल से हाफ स्टार, स्टार वार नहीं रे, स्टार है। अरे डायग्राम देके डरा दिया है रे, डायग्राम देने के बाद वो डर जाते हैं बच्चे, अरे बाप रे ये क्या है, कुछ नहीं है। इज दिस अंडरस्टूड? सो क्या बोलते हैं आप लोग?